میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے سیکھ لیا ہو؟ اگر انہوں نے لکھا تو دوسرے انسان نے لکھا ہے، تیسرا آپشن کوئی نہیں، بس نہ کتا بستا ہے نہ گدھا او بستا بھائی ہے، نہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، بستا میں تھوڑا سا ہے۔ اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں جواب اسی اعتبار سے دوں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ رائٹ علیہ وسلم نے یہ کسی اور سے سیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے سیکھا ہے، رائٹ؟ رائٹ اوکے، میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ اتنا عظیم الشان کلام لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا عظیم الشان قائد بننے کا موقع فراہم کر رہا ہے اور خود غائب ہو گیا منظرنامے سے، کسی کو پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ ٹھیک ہے جتنے کہ اتنا عظیم الشان کلام بھی دے رہا ہے اور دوسرے کو لکھ کر دے رہا ہے، سارے موقع دوسرے کو دے دیا بغیر کسی غرض کے۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اوکے اب اس کا جواب دیں، ایسا اس کوئی میں کیا بندہ ہے کہ جو دوسرے کو لکھ اس کر کا دے اور یہ کہے ہو کہ تم سکتا پوری ہے، دنیا کے لیڈر بن جاؤ، تم ایسے آدمی بن جاؤ کہ جس کا اگر نام آپ رہتی دنیا تک رہے، مجھے نام نہیں چاہیے، ایسا کوئی ہے؟ دیکھیے اگر آپ یہ لاجک دے رہے ہیں تو میں کاؤنٹر لاجک یہ دے سکتا ہوں کہ پروفٹ محمد جی نے ان کو کچھ لالچ دیا ہوگا، کچھ اس کے بدلے دیا ہوگا، یا پھر ان کے ہاں تو لیڈر ہوں گے وہ ان سے لالچ چھپوایا جب ہوگا کام۔ وہ السلام لالچ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہونے والی ہے۔ اس کے اندر ایک صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے ایک سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے آیا کرتا تھا؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام کسی آدمی نے لکھ کر دیا ہو، اور یہ بحث بہت دیر تک چلی۔ آپ کو سن کر بڑا مزہ آنے والا ہے اور آپ کو بہت بڑی جانکاری اس ویڈیو میں ملے گی کہ کیا واقعی یہ کلام کسی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دیا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیے اور جانیے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے سیکھ لیا ہو؟ اگر انہوں نے لکھا تو دوسرے انسان نے لکھا ہے، تیسرا آپشن کوئی نہیں، بس نہ کتا بستا ہے نہ گدھا او بستا بھائی ہے، نہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اپنی بستا کلیئرٹی کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں جواب اسی اعتبار سے دوں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ رائٹ علیہ وسلم نے یہ کسی اور سے سیکھا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے سیکھا ہے، رائٹ؟ رائٹ اوکے، میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا کہ اتنا عظیم الشان کلام لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا عظیم الشان قائد بننے کا موقع فراہم کر رہا ہے اور خود غائب ہو گیا منظرنامے سے، کسی کو پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ ٹھیک ہے جتنے کہ اتنا عظیم الشان کلام بھی دے رہا ہے اور دوسرے کو لکھ کر دے رہا ہے، سارے موقع دوسرے کو دے دیا بغیر کسی غرض کے۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اوکے اب اس کا جواب دیں، ایسا اس کوئی میں کیا بندہ ہے کہ جو دوسرے کو لکھ اس کر کا دے اور یہ کہے ہو کہ تم سکتا پوری ہے، دنیا کے لیڈر بن جاؤ، تم ایسے آدمی بن جاؤ کہ جس کا اگر نام آپ رہتی دنیا تک رہے، مجھے نام نہیں چاہیے، ایسا کوئی ہے؟ دیکھیے اگر آپ یہ لاجک دے رہے ہیں تو میں کاؤنٹر لاجک یہ دے سکتا ہوں کہ پروفٹ محمد جی نے ان کو کچھ لالچ دیا ہوگا، کچھ اس کے بدلے دیا ہوگا، یا پھر ان کے ہاں تو لیڈر ہوں گے وہ ان سے لالچ چھپوایا جب ہوگا کام۔ وہ لالچ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ بندہ واقعی اتنا بیوقوف تھا کہ پوری دنیا کی حکومتیں 52 اسلامی ملک چھوڑ کر، 1 بلین سے زیادہ کی پاپولیشن چھوڑ کر اور جزیرۃ العرب کی پوری حکومت چھوڑ کر، مدینے کی ریاست چھوڑ کر وہ چند اشرفیہ لے کر گمنام ہو گیا۔ بھائی وہ آپ بھائی کے صاحب قبیلے کا تو نہیں تھا، وہ وہ کہاں چلا گیا، کیوں نہیں آیا وہ؟ ہو سکتا ہے اس کو مار ڈالا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن پھر اس سے آپ اگر اس کو مار ڈالا تو پھر اگر اس کو مار ڈالا تو ہاں پھر قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر مزید کچھ نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو آتا رہا۔ 23 سال بھائی سے صاحب کافر قرآن آپ کو بھی پتا ہے ایک دم میں چلے نہیں ہو گیا آتا، ہو گیا پروفٹ ہو گیا اس محمد کا بول کام۔ رہے تھے۔ اچھا میں چونکہ شروع سے شامل نہیں تھا تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خدا کی طرف سے کسی بھی طرح کے کلام کے بھیجے جانے کے قائل ہیں؟ یہ صرف قرآن سے مسئلہ ہے یا ہر طرح کے کلام سے مسئلہ ہے؟ ابھی تو آپ یہ چینل اسلام کا ہے تو میں اسلام اسپیسیفک باتیں ہی کر رہا تھا۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہ مجھے معلوم ہے، مجھے یہاں گیتا کو ثابت نہیں کرنا ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نہیں جی خدا کوئی کلام بھیج ہی نہیں سکتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں اس نے بھیجے ہوں گے دوسرے، قرآن نہیں بھیجا، قرآن نہیں ہو سکتا اس کا کلام، دونوں میں فرق ہے۔ اوکے مجھے لگتا ہے کہ اگر خدا بھیجے گا تو سب کو بولے گا، ایک اسپیسیفک آدمی کے تھرو یا پھر ایسے نہیں یہ آپ نے غلط، آپ صحیح سے سوال سمجھے نہیں میرا۔ شروع سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے آج تک کیا خدا نے کچھ بھیجا ہے یا کچھ نہیں بھیجا؟
भेजा है मतलब ये बोलने के लिए कि हाँ मैं खुदा हूँ और मैंने ऐसा ऐसा किया है खुद को ये उसने करने के उसने लिए। उसने उसने कोई कलाम भेजा कि नहीं भेजा, शुरू से लेकर आज तक कोई भी? नहीं बोलते हैं, क्लेम करते हैं, जैसे इस्लाम में क्लेम करते हैं कि कुरान आपकी भेजा बात है पूछ वो, रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे ऐसे आपके मालूम है। नजदीक। वो तो हमें भी पता है, सब क्लेम वो करते हैं, मुझे नहीं आपके पता, नजदीक। हाँ, वो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं नहीं पता पता, तो है, बोलना नहीं चाह मैं रहे हो। पता सीधे सीधे बात करें कि उसने कोई कलाम भेजा कि नहीं भेजा, उसके अंदर सलाहियत है नहीं भेजा भेजने की या नहीं भेजने की? अच्छा चलो ये बताएं, सलाहियत है उसके और अंदर भेजने की या नहीं? देखिए सलाहियत है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी भेजे लोग ऐसे बोलते हैं कि खुदा ने भेजा या फिर भगवान ने भेजा, लेकिन कोई देखो, प्रूव नहीं कर पाया। आपको अगर कोई भी गुफ्तगू करनी है तो उसमें ऑनेस्टी बेइंतहा जरूरी है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो फिर गुफ्तगू सही से नहीं हो पाती है। अभी क्या है, आप छुपा रहे हैं, आप अपनी बात इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आपको आगे की बात सुननी नहीं है ना? मैं क्या तो बात मैं, छुपा रहा हूँ? हाँ वो छुपाए रहे हैं कि आपका कोई भी अकीदा है, या तो आप ये कहें कि मैं खुदा को नहीं मानता। भाई बताएं, आप खुदा को मानते हैं? देखिए अगर खुदा वगैरह है, ठीक हम्म, है, तो हो सकता है वो भेजे, तो ठीक है, इसका मतलब तो हो खुदा सकता है है भेज कि नहीं सकता है? है। बुनियादी सवाल अब मेरी ये है। आइडियोलॉजी तो एथीस्ट है, मेरी आइडियोलॉजी तो एथीज्म की तरफ। हाँ तो चलिए ठीक है, अब अगर आप जो है एथीस्ट हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है। चलें तो अब यहां से शुरू करते हैं राइट। कि अगर खुदा मौजूद नहीं है, नहीं देखिए सुन लीजिए आप सुन जिसमें लीजिए सुन लीजिए, मतलब अभी जुड़े अगर हैं। खुदा मौजूद है और वो हमसे सुप्रीम है, हमसे सुप्रीम है, जाहिर है कि वरना तो खुदा ही नहीं है। फिर अगर हमसे भी लोअर कैटेगरी का होगा तो फिर वो हमारा मालिक और खालिक कैसे होगा? हमसे सुप्रीम होना तो जरूरी है ना उस खुदा का। तो अगर हम लोअर बीइंग होते हुए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, मैं इस वक्त अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, बाज मर्तबा डायरेक्ट पहुंचाते हैं और बाज मर्तबा किसी वास्ते के जरिए, किसी थ्रू मीन्स के थ्रू हम पहुंचाते हैं, तो वो खुदा जो सुप्रीम है वो अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा सकेगा? उसके अंदर तो इस सलाहियत का होना बदरजे औला जरूरी है ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके हिसाब से अगर सिनेरियो लेके जाए, तो अगर वो कुछ मैसेज भेजता है तो ये पूरी दुनिया को पता चलेगा। ऐसे नहीं कि जो इंसान बोल रहा है उसके ऊपर डाउट आए, या फिर बोले सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली वो ऐसी कोई बात बात उसकी वो जो क्या बात बोल रहा है इसके ऊपर ये डिपेंड आप करता एक स्टेप आगे चले गए, क्योंकि पहला स्टेप ये है कि हम ये साबित कर दें कि खुदा में कलाम भेजने की सलाहियत है या नहीं। जब हमने इसको तस्लीम कर लिया, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का कलाम है जो खुदा भेज सकता है या उसको भेजना चाहिए। पहले तो ये मान लेना कि खुदा में सलाहियत है कलाम भेजने की, राइट? है। ठीक है, हाँ ठीक है, भेज सकता है। भेज अगर खुदा सकता है। एग्जिस्ट करता है तो अगर ऑब्वियसली। खुदा है हाँ तो वो कलाम भेज सकता है, उसके अंदर इस सलाहियत का होना जरूरी है, वरना वो फिर खुदा नहीं है, फिर हम खुदा हैं, क्योंकि हम भेज सकते हैं ना कलाम, और हम नहीं खुदा नहीं है। वो जरूरी नहीं है, वो आप जरूरी नहीं है कि अगर खुदा है तो उसके ऊपर वो भेज सकता भी है, नहीं भी सकता है, लेकिन भेज नहीं, वो सकता है। चाहेगा तो भेजेगा, उसके अंदर इस सिफत का होना, कलाम भेजने की सिफत का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर वो सिफत मौजूद है राइट। ना। हमारे अंदर वो सिफत मौजूद है। मतलब एबिलिटी बोल रहे हो आप? सुन लीजिए, एबिलिटी, हमारे अंदर वो सिफत और उतनी एबिलिटी पावर। मौजूद है। अगर वो खुदा में करेक्ट, हाँ। एबिलिटी नहीं होगी तो हम खुदा होंगे ना, वो नहीं होगा। हम लोग बोल सकते कोई इतना तो पावरफुल है कि तो चाहे तो कुछ भी हाँ सकता है, कुछ भी कर एग्जैक्टली, वही सकता है, वही तो मैं इस पे लाना चाह रहा था। तो कॉन्टेक्ट कर चले, वो सकता है। इतना राइट, पावरफुल है कि वो कलाम भेज सकता है, ठीक है। अब ये राइट, है कि उसने कलाम, उसको ऐसा भेजना चाहिए कि वो सारी इंसानियत को पता चले कि ये खुदा का कलाम है, राइट? राइट। ठीक, अच्छा, अगर इमेजिन करें कि मुझे खुदा के कलाम होने का ऐसे ही पता चल जाए, जैसे मेरे यहां जहां पर मैं हूं इस वक्त सूरज निकल रहा है ना, आपके पीछे दिख रहा है सूरज, मुझे ऐसे ही पता चल जाए। मुझे एक बात बताइए कि क्या इस निकलते सूरज का मैं इनकार कर सकता हूं? नहीं, सूरज दिख रहा है ऐसे सामने। नहीं कर सकता ना इनकार। अगर कोई मुझे इस हाँ। वक्त दुनिया दिन का वक्त है और मुझसे कोई ये कहे, जहां पर मैं हूं दिन का वक्त है, कोई मुझसे ये कहे कि भाई हम जो है, आपका नाम क्या है? आदम ईव, आदम ईव साहब, हम आपको जो है यहाँ लेकर आते हैं, आपका इम्तिहान है, ये देख के बताइए कि सूरज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि भाई ये कैसा इम्तिहान है, सूरज तो सामने मौजूद है। इस तरह कोई इम्तिहान होता है?
जो चीज सामने यकीनी तौर पर मौजूद हो कि जिसका आप इनकार न कर सकें, उसको आप मजबूर हो इकरार करने पर, तो फिर वो इम्तिहान नहीं है। तो खुदा अपना कलाम जरूर भेजता है, लेकिन अगर वो उतना यकीनी बना दे कि हर इंसान को के दिल में उसको उस तरीके से पेवस्त कर दे, जैसा कि मुझे मेरी अपनी जात का इल्म है, मुझे इस बात का इल्म है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे इस बात का इल्म है कि मैं प्यासा हूं और मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, मुझे इतना इल्म है कि सूरज निकल रहा है, मैं इसका इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा इल्म हर इंसान को पैदाइशी तौर पर खुदा अपने कलाम के ताल्लुक से दे, तो फिर इस दुनिया का दारुल इम्तिहान होना बेकार है। फिर यहाँ इम्तिहान नहीं है, यहाँ हम मौज मस्ती काटने के लिए आए, जन्नत यही है। तो आप अगर हमारा मुकद्दमा समझेंगे, सुनिए मेरी बात, आप अगर हमारा मुकद्दमा समझे बगैर कुरान पर कलामुल्लाह पर एतराज करेंगे तो फिर इसी तरह के एतराज होंगे। लेकिन अगर आप हमारा मुकद्दमा समझ जाएंगे कि भाई हमारा मुकद्दमा ये है कि ये कलाम यहाँ पर इसलिए आया है कि हमारा इम्तिहान हो कि हम इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हाँ, ये नहीं है कि अल्लाह ने हमें ब्लाइंडनेस में नहीं रखा कि अंधेरे में बिल्कुल रखा हो कि नहीं हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कलाम है। उसके कलाम की कुछ खुसूसियात हैं। अब अगर आपको जुस्तजू है कि उसका कलाम की क्या खुसूसियात हो सकती हैं, तो बहुत आसानी के साथ उसको समझाया जा सकता है। उसकी कुछ खुसूसियात खुद कुरान करीम ने अपनी यानी मुख्तलिफ सूरतों के अंदर बयान की हैं, और उन खुसूसियात की बुनियाद पर ही उसने चैलेंज किया है कि भाई इस जैसा लेकर आओ। तो कोई ना कोई खुसूसियात होंगी ना, तो तभी तो चैलेंज किया है। उनमें एक खुसूसियत ये है कि ये जो कलाम है ये अपने आला तरीन समझ लीजिए कि लिटरेरी स्टैंडर्ड के बावजूद बगैर किसी प्रिपरेशन के पेश किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। यानी अचानक, जिसको फिल बदी जिसको बोलते हैं, कि फौरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत पढ़ते थे। ऐसा नहीं होता था कि जी वो कहते थे अच्छा रुको मैं 4 दिन के बाद बताऊंगा सोचकर, अच्छा भाई, और इस तरीके से फिर 4-5 दिन के बाद वो तैयारी करके वो आयतें आ रही हों, बल्कि फौरी तौर के ऊपर वो आयत नाजिल होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पेश कर देते थे। और वो आयत लिटरेरी स्टैंडर्ड के ऊपर इतनी हाई होती थी कि उसको बगैर प्रिपरेशन के तैयार नहीं किया जा सकता। एक नंबर 2, दूसरी खुसूसियत, आप ये कहें ज्यादा ज्यादा आप ये कह सकते हैं ना, जो एक बात बोली उसके ऊपर मैं सुन लीजिए, होल्ड ऑन, ज्यादा ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। मैं ये बोल रहा, इससे कैसे प्रूव होता है कि अल्लाह ने लिखे? इससे यही प्रूव होता है आजकल भी बहुत सारे होशियार शायर और शेरो शायर इंग्लिश में, उर्दू मैं वही कह रहा हूँ, उसी ये जो मैं अब आगे कहने जा रहा हूँ ना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सुन लीजिए, मैं आगे जो कहना चाह रहा हूँ उसका जवाब आपको मिलेगा अगली बात से। आप ज्यादा ज्यादा ये कह सकते हैं कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया, उनको कुछ आता होगा शेर और शायरी, तो उन्होंने जो है ये कलाम लिख दिया। ज्यादा ज्यादा ये और ये बहुत कॉमन इल्जाम है। जरूरी नहीं उन्होंने ही लिखा हो, कोई हो सकता है, चलो किसी ने भी लिखा, लेकिन फिर उसके बाद जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी ये साबित करना कि किसने लिखा। पॉसिबिलिटी जो है उस पर बात नहीं कर सकते। आप ये तो कह सकते हैं कि नहीं अल्लाह ने नहीं लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, चूंकि कलाम हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, तो आप यहां तक तो एतराज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं लिखा, खिलाफत अब्बासिया में लिखा गया है, तो आप साबित करेंगे। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप ये साबित करें कि खिलाफत अब्बासिया में किसने लिखा। समझ गए आप? देखिए फिर यहाँ पे आप अज्यूम करके चल रहे हो कि यहाँ पे 2 ही लोग हैं, एक है प्रॉफिट मोहम्मद और एक तो अल्लाह। अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा, तीसरे का नाम बताइए। वैसे नहीं होता है जी, तीसरे का नाम बताइए जी, तीसरे का नाम मैं थोड़ी था वहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं लिखा तो अल्लाह ने लिखा, क्योंकि वहाँ पे 2 ही लोग थे। ऐसे नहीं होता ना। अच्छा, कैसे होता है? ये दुनिया की हर किताब, दुनिया की हर किताब या तो इंसान ने लिखी या फिर मशीन ने लिखी है। कोई दूसरा जानवर लिख नहीं सकता, कोई भगवान ने नहीं भेजी है। ठीक है, अगर कोई नहीं, होल्ड ऑन, आपने कहा कि या तो ये 2 पॉसिबिलिटी कि या तो अल्लाह ने लिखा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, ये सही नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, होल्ड ऑन, तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि किसी और ने लिखा होगा, राइट? Hey, let's explore some place now. I know a good sunset spot, but you have to come. किसी और इंसान ने लिखा होगा, करेक्ट? हाँ, वो इंसान कौन है? क्योंकि अब ये दावा आपकी तरफ से हो गया, हमें नहीं पता इसका। तो फिर आप ये दावा नहीं कर सकते। अगर दावा कर रहे हैं तो उसकी दलील देंगे। हम ये दावा कर रहे हैं कि हम ये दावा कर रहे हैं, होल्ड ऑन, हम ये दावा कर रहे हैं कि ये कलाम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मिला, ये हमारा दावा है। इस पर हमारे पास दलील है और उसमें एक दलील मैं ऑलरेडी दे चुका। अब दूसरी दलील आ रही है। दूसरी दलील ये आ रही है कि अगर मान लें
کہ اس کے آتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو دنیا کا کوئی بھی آدمی، شاعر ہو، وہ اسپیکر ہو، وہ کوئی رائٹر ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 سال تک انتظار کرتا ہے کہ یار میں 40 سال کے بعد لکھنا شروع کروں گا، اور اچانک جب وہ لکھے پہلا جملہ یا پہلا پیراگراف، وہ لٹریری سٹینڈرڈ کی اپنی پیک پر ہو. ایسا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کوئی بھی شاعر، وہ غالب ہوگا، اقبال ہوگا، دنیا کا کوئی بھی پوئٹ ہوگا، وہ شیکسپیئر ہوگا، آہستہ آہستہ اس کی تھاٹس میں اور اس کے پریزنٹیشن میں ایوولوشن ہوگا کہ وہ پہلے تھوڑا سا کم درجے کا لکھے گا، پھر ہائی درجے کا لکھے گا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھتا چلے جائے گا. آپ غالب کی پوئٹری اٹھائیں تو غالب کی جو پوئٹری ہے، اس کے جو ابتدائی پوئٹری ہے وہ بہت مشکل ہے، فارسی کے سارے الفاظ ہیں، اور ان کی زندگی کی جو آخری پوئٹری وہ بہت آسان ہے، ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. یہ ایوولوشن ہوا ہے تھاٹس کے اندر. یہی حال اقبال کا ہے. یہ سارے جتنے پوئٹس ہیں وہ کسی بھی لینگویج کے ہوں، سب کا یہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک سورت بھی 40 سال کی عمر سے پہلے پیش نہیں کی، اور اچانک 40 سال کی عمر کے بعد وہ پیش کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ جو عرب پوئٹس ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسا کلام ہے کہ ہم اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ وہ ریسیو کر رہے تھے. اگر خود کہہ رہے ہوتے تو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی سینٹنس، کوئی نہ کوئی جملے، فقرے، کوئی صورت ورت پیش ہونی چاہیے تھی. تو یہ اب ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کلام نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور نے لکھا ہے، تو اب یہ دعویٰ آپ نے کر دیا، اس کی دلیل آپ کو ثابت پیش کرنی ہوگی کہ کس نے لکھا ہے. چونکہ محض پاسبلٹی کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. میں اگر یہ کہہ دوں کہ پاسبلٹی، آپ دیکھیے آپشن دو ہی لے کے چل رہے ہیں، یا تو پروفٹ محمد یا تو پھر اللہ. یہ دونوں ہی چونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے کی ہمارے پاس چین آف ٹرانسمیشن ہے، اور ایک چین آف ٹرانسمیشن نہیں ہے بلکہ میس ٹرانسمیشن ہے. تو میس ٹرانسمیشن اس بات کی دلیل ہے کہ بیچ میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے کہ جس نے اس کلام جو ہے گھڑ کے ہمیں دے دیا ہو. میس ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اس کو ہم اردو یا عربی میں بولتے ہیں تواتر. جی ہاں، میس ٹرانسمیشن ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا، یا آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن ہوا ہے لیکن ڈیفینیٹو نالج کی بنیاد نہیں ہے. یہ آپ اس میں سے بتائیں کون سا راستہ چوز کریں گے؟ کس بات کا ماس ٹرانسمیشن بول رہے ہیں آپ؟ میس ٹرانسمیشن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ آپ کو پتہ ہے میس ٹرانسمیشن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ماس ٹرانسمیشن مطلب بڑی کوانٹٹی میں ٹرانسمیشن ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا. کیا ہے وہ مجھے بتائیں تھوڑا سا. ماس ٹرانسمیشن کا کیا مطلب ہے؟ I don't know, maybe it's something you're mass transferring a knowledge in a huge amount or mass transferring something else. ہیوج اماؤنٹ میں نالج ٹرانسمٹ کرنا ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوتا، بلکہ اتنے لوگوں کا کسی ایک چیز کو رپورٹ کرنا کہ جتنے لوگوں کا عام طور سے جھوٹ کے اوپر متفق ہونا ممکن نہ ہو، اس کو ماس ٹرانسمیشن بولا جاتا ہے. اب میں آپ کبھی کابل گئے ہیں؟ نہیں گئے ہیں کابل؟ نہیں گئے؟ تو آپ یہ تو نہیں مانتے کہ کابل جھوٹ ہے، کابل شہر موجود ہی نہیں ہے دنیا میں، یا ہے موجود؟ آپ بھائی صاحب یہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں؟ میں دلیل دے رہا ہوں. کابل موجود ہے کہ نہیں؟ کابل موجود ہے کہ نہیں ہے، اور یہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ کابل کے موجود ہونے کو اس لیے جانتے ہیں اور مانتے ہیں چونکہ اس کے تعلق سے دنیا کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں پرسنلی سن لیا ہوگا کہ ہاں بھائی کابل موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں جی کابل موجود ہے. تو یہ میس ٹرانسمیشن کی دلیل ہے، یہ میس ٹرانسمیشن کی ایک ایگزامپل ہے. سن لیجئے، میس ٹرانسمیشن کی ایک ایگزامپل ہے. تو اسی طریقے سے ایک پوری جنریشن نے 100,000 پلس لوگوں نے یہ رپورٹ کیا، ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ لوگوں کو، کہ یہ قرآن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور وہاں سے یہ نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. اس کو ماس ٹرانسمیشن کہتے ہیں. اب یا تو آپ اس کا انکار کریں کہ نہیں ماس ٹرانسمیشن نہیں ہوا تھا، اور یا یہ کہیں کہ ماس ٹرانسمیشن سے ڈیفینیٹو نالج حاصل نہیں ہوتی. دو راستے آپ کے سامنے ہیں، آپ ان میں سے کون سا راستہ چنیں گے؟ دیکھیے، آپ باتیں بہت بڑی کر رہی ہے، باتیں بنا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی بات سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ کتاب اللہ نے لکھی ہے. آپ بس یہ پروو کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد نے نہیں لکھی تو آپ پروو کیے کسی اور نے لکھی ہے. لیکن اس سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا بلند بھی ہے کہ آپ میری بات سمجھ بھی پا رہے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا؟ میں نے آپ سے کہا کہ دو راستے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ میس ٹرانسمیشن نہیں ہوا،
या ये कहें कि मास ट्रांसमिशन हुआ होगा लेकिन उससे डेफिनेटिव नॉलेज नहीं आती। दो में से कौन सा रास्ता आप चुनेंगे? देखिए, आप सिर्फ बातें घुमा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे भाई ना, तो सीधे प्रूव सीधे मैं बात कर बताइए। रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ देखें बिल्कुल आप दो और दो चार की तरह आवाज है, सुनिए दो दो चार की तरह आवाज है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। हमारा दावा ये है कि अल्लाह ने ये कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और उनसे मास ट्रांसमिशन होकर ये कलाम हम तक पहुंचा है। देयरफॉर वी डेफिनेटिवली नो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलाम इस उम्मत को पहुंचाया है। ये हमारा पूरा इस दावा है। बात का प्रूफ क्या अब है आपके आप इस पास? दावे को डिबंक करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप ये दो साबित रास्ते करें नहीं है, ये कि आपकी तरफ मास से दो रास्ते ट्रांसमिशन हैं। नहीं हुआ, और दूसरा रास्ता ये है कि आप ये कहें कि नहीं मास ट्रांसमिशन हुआ है लेकिन उससे डेफिनेटिवली कुछ नहीं पता चल सकता। भाई बीच से अगर आप निकाल इन क्यों रहे हो? दोनों वो पर बातें गुफ्तगू नहीं बातें बोल करना रहे हैं चाहते ना। तो आपके साथ गुफ्तगू करना बेकार है, क्योंकि आप बुनियादी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर आप गुफ्तगू करना आप चाहते हैं तो इन दो में से किसी एक बात को एक्सेप्ट करके उसको रद्द कीजिए। जी, मुझे लगता है आप मेरा ओवर टू टाइम यू। वेस्ट कर रहे हैं। आप बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप प्रूव कुछ नहीं दे पा रहे हैं। आप जो बातें बोल रहे वो हो तो सिर्फ मेरे भाई ऑडियंस के लिए पब्लिक को बोल रहे पता हो। चल रहा है यकीनन, और जो भी जब ये एग्जैक्टली, वीडियो पब्लिक पब्लिक में मुस्लिम आएगी है, तो उनको वो पता चल आपकी बातें जाएगा मानेगी कि क्योंकि पब्लिक आपका मुस्लिम है। लेवल जो है वो कहाँ पर है, कि एक बुनियादी बात जवाब देना तो दूर की बात, आप उसको बुनियादी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा आखिर बुनियादी बात मुद्दा क्या आपके है। लिए ये है कि अगर किताब प्रॉफिट मोहम्मद ने लिखी तो फिर अल्लाह ने लिखी, दो ही ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त। पता नहीं आप यूएस में कैसे चले गए। नहीं वो तो मुझे मालूम है मैं कैसे आ गया, और अगर आपको मालूम है तो आप भी आके दिखा दें, वो कोई मसला नहीं है। यूएस कोई जन्नत नहीं है कि यहाँ पर जो है आने का मतलब ये है कि हर एक आदमी यहाँ इंटेलेक्चुअल होगा, एक से एक गधा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ असल वो बात तो ये दिख नहीं रहा है, है। असल और थोड़ा सा पर्सनल ना हो, चूंकि जब आदमी सामने वाला पर्सनल होने लगता है ना तो फिर ये लगता है कि भाई उसको कहीं चोट लग रही है। आप उसका एहसास ना कराएं कि आपको चोट लग रही है, इंटेलेक्चुअली बात करें, इसका ताल्लुक पर्सनल पर ना है ना, वरना फिर हम जब आएंगे लेकिन पर्सनल तो फिर बहुत जोर से चोट लगती है सामने वाले को। तो मैं सिर्फ ये देखिए, कहना चाह रहा हूँ आप बातें कि इतनी बोल रहे हैं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने दो ऑप्शंस हमारे एक्सेप्ट ना करके तीसरे ऑप्शन को कहा कि नहीं कोई और भी लिख सकता है। ये आपका दावा है, और जिसका दावा है उसके ऊपर दलील है, वो दलील आप देंगे। हमारा दावा ये है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि ये कलाम अल्लाह ने नाजिल किया, रसूलुल्लाह ने दिया, और रसूलुल्लाह के दिए हुए का हमें कैसे पता चला? मास ट्रांसमिशन से पता चला। अब आप उसका इनकार कर दें और उसको साबित कर दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। डिबेट का तरीका तो यही होता है ना मेरे भाई। आप पहले तो गॉड को रूम में रख रहे, गॉड है ही नहीं। आपको पहले ये तो प्रूव फिर करना होगा सारी बात कि ही गलत हो, तो फिर प्रॉफिट बात करें मोहम्मद गॉड ने के ऊपर, क्योंकि आप पहले ही ये मान चुके हैं कि अगर नहीं, गॉड नहीं, मौजूद देखिए, है तो उसके अंदर कलाम भेजने की सलाहियत और सिफत मौजूद है। आप पहले ही मान चुके हैं, अब वापस नहीं जा सकते। देखिए अब आप वापस जाने बातें का घुमा मतलब रहे ये है कि फंस गए तो चलो फिर वापस चले। यहाँ से वापसी नहीं है मेरे भाई। साहब। हमारी स्ट्रीम में मेरे सामने जब आ जाते हैं तो हम तो फिर जकड़ के चलते हैं, कहीं कोई सुराख नहीं छोड़ते कि वहां से निकल जाए बंदा। वो वैसे जी, आपको लगता होगा, लेकिन आप से बातें बना रहे हैं, आप कुछ प्रूव नहीं कोई कर पा बात नहीं, रहे। वो लोगों को डिसाइड ठीक है, करने दीजिए कि कौन बातें बना रहा है और कौन लोग फंस रहा है। यहाँ मैं सिंपली आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरा नैरेटिव हमारा आपके सामने आ गया, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया असली उसको बात डिबंक नहीं है। करने का। ये मेरा आपके ऊपर एहसान है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे कैसे हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, तो आप साबित कीजिए। नहीं, वो जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका वो तरीका ही जरूरत गलत इसलिए है। नहीं है आप मेरे भाई क्योंकि आपने आता रूम में नहीं दो है। ही एक इंसान आप थे, एक वर्ल्ड रूम व्यू में डेवलप करके हमारे पास आ गए और ये पूछने के लिए कि साबित करो खुदा कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। अब जब हम साबित करने बैठे राइट, तो ना जी हम एग्जैक्टली। तो नहीं मानते, हाँ, ये तो आप बातें बना रहे हैं। करेक्ट। तो ये सारे पर्सनल अटैक होते हैं। मैंने पूरी गुफ्तगू में एक भी मर्तबा आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि आप मैंने झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये किया नहीं है। कहा कि आप बातें बना रहे हैं। आप दलील का जवाब दीजिए। ये होता है एक इंटेलेक्चुअल मैं तरीका। दलील दे रहा इसको छोड़ दीजिए कि मैं यूएस कैसे आया, आप जहां भी किसी गटर वटर में है, मुझे नहीं पता कहाँ हैं आप। तो मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, हम इंटेलेक्चुअली बात करें। अगर वाकई आपके पास कुछ है अब मजीद कहने को, नहीं है तो फिर खुदा हाफिज। देखिए, आपने जो बातें बताई, आप ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने 40 साल तक कुछ नहीं लिखा, तो बाद में कैसे लिखा? ठीक है, इससे ये साबित नहीं होता है कि या तो उन्होंने नहीं लिखा है तो डायरेक्ट खुदा ने लिखा, बीच में कोई इंसान नहीं है। यहाँ लिखने अगर की तुम बात ये ही नहीं बोल हो रहे रही हो कि है। बीच में कोई हमने इंसान है, एक भी तुम मर्तबा लेके आओ लिखने का लफ्ज नहीं बोला। लिखने का मसला ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुरान रिसीव लिखना या करके फिर देने की बोलना, बात की है मैंने, लिखने की बात नहीं की है। राइट, बोलना है फिर
राइट, लिखना है और फिर रिसाइट करना। इससे ये प्रूव नहीं होता कि प्रॉफेट मोहम्मद जी ने नहीं लिखा है या फिर नहीं रिसाइट नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक किया नहीं था, तो इसका मतलब अल्लाह ने किया। दूसरे पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अल्लाह। अगर मैं बोलूँ ये हो सकता है किसी और से बोला हो जो कि लिटरली में बहुत माहिर हो, राइट, तो हाँ, आप बोलेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली इंसान तो जब आप नहीं ये हो कहते हैं ना कि ये हो सकता है कि अल्लाह के अलावा कोई और हो कि जिससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना हो, है ना, समझा हो, है ना, ये बात ये कह रहे हैं ना आप? नहीं है। अल्लाह अल्लाह हम लोग लास्ट ऑप्शन मानेंगे, नहीं नहीं, राइट। मैं आप कह रहा हूँ कि अल्लाह हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, आप ये कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलाम किसी और से सीख लिया हो, मसलन वर्का बिन नौफल से सीख लिया हो, या राहिब से, राइट, नॉर्मल बात तो वही है। या हुबैरा नॉर्मल राहिब से सीख लिया हो, यही तो कहना चाह रहे हैं ना? लॉजिकल, कोई भी सेंसिबल लॉजिकल इंसान वही भाई मानेगा। मैं आपसे डायरेक्ट क्या ऐसे पूछ रहा हूँ, गाली आप यही करेंगे कहना चाह रहे हैं ना कि हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से सीख लिया हो? अगर उन्होंने लिखा तो दूसरे इंसान ने लिखा है। एक दोस्त तीसरा ऑप्शन कोई नहीं बचता, ना कुत्ता बचता है, ना गधा तो बचता भाई है, ना मैं क्या कुत्ता पूछ रहा बचता हूँ, है, मैं थोड़ा सा ना अपनी अल्लाह। क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं जवाब उसी एतबार से दूं। आपका दावा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु राइट, अलैहि वसल्लम ने ये किसी और से सीखा है, अल्लाह के अलावा किसी और बंदे से सीखा है, राइट? राइट, ओके, मैं कहता हूं कि वो बंदा कितना बेवकूफ होगा कि इतना अजीम उश्शान कलाम लिखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सबसे बड़ा अजीम उश्शान कायद बनने का मौका फराहम कर रहा है और खुद गायब हो गया मंजरनामे से, किसी को पता नहीं वो बंदा कौन था। उससे बड़ा बेवकूफ कौन है कि ठीक है, जितने कि इतना अजीम उश्शान कलाम भी दे रहा है और दूसरे को लिख कर दे रहा है, सारे मौके दूसरे को दे दिए बगैर किसी गरज के। ठीक है, तो ठीक है, ओके। अब इसका जवाब दें, ऐसा कोई उसमें क्या बंदा है कि जो दूसरे को लिख लिख कर इसका दे और ये कहे हो कि तुम सकता पूरी है दुनिया के लीडर बन जाओ, तुम ऐसे आदमी बन जाओ कि जिसका अगर नाम आप रहती दुनिया तक रहे, मैं मुझे नाम नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? देखिए, अगर आप ये लॉजिक दे रहे हैं तो मैं काउंटर लॉजिक ये दे सकता हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद जी ने उनको कुछ लालच दिया होगा, कुछ उसके बदले दिया होगा, या फिर उनके हाँ, तो लीडर होंगे, वो उनसे लालच, करवाया जब होगा काम। वो लालच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और वो बंदा वाकई इतना बेवकूफ था कि पूरी दुनिया की हुकूमतें 52 इस्लामी मुल्क छोड़कर, 1 बिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन छोड़कर और जजीरतुल अरब की पूरी हुकूमत छोड़कर, मदीने की रियासत छोड़कर वो चंद अशरफिया लेकर गुमनाम हो गया। भाई वो भाई आपके साहब, कबीले का तो नहीं था, वो सब चीजें वो टाइम पे नहीं थी, वो सब चीजें वो वो टाइम पे नहीं आपके थी, वो कबीले का झूठ तो है नहीं यार। था। इस्लाम वगैरह बाद में आया, इस्लाम वगैरह मोहम्मद बाद में सल्लल्लाहु आया, अलैहि ये वसल्लम प्रॉफेट देखिए, मोहम्मद कुरान जी से करीम थे। तो फतेह मक्का के बाद भी नाजिल हुआ। फतेह मक्का के ऊपर सबको पता चल गया था कि पूरा जजीरतुल अरब के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत हो चुकी है कायम। वो बंदा आके आ जाता कि भाई लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम किसको मान रहे हो, मुझे बनाओ। भाई साहब, रियासत मदीना, मदीना की हो हुकूमत सकता जो है है उसको वो मार 13 डाला साल हो। के बाद कायम हो गई थी। तो वो आके कहता कि भाई मुझे तो हुकूमत चाहिए मदीने की, ये सारे उहद और बदर हो जिसमें सकता है सारे उसको मार डाला सब हो। चीजें जो है, सारे क्रेडिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ले रहे हैं, मुझे चाहिए। वो कहाँ चला गया, क्यों नहीं आया वो? हो सकता है उसको मार डाला हो, कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन फिर इससे हम अगर उसको डायरेक्ट मार जनता डाला, तो फिर अगर उसको मार डाला तो हाँ, फिर कुरान नाजिल नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद फिर मजीद कुछ नहीं आना चाहिए था, वो तो आता रहा। वो 23 साल भाई तक साहब, आता कुरान रहा। आपको भी पता है एक एक चले एकदम में चले, नहीं हो आ गया हो रही। गया प्रॉफेट हो गया मोहम्मद इसका बोल काम। रहे थे, आदम आदम भाई, क्या हो गया या काम? चले, बहुत हो गया। ये आदम भाई से मुझे ये पूछना है बस, आखिरी सवाल, कि इन्होंने कुरान पढ़ा भी है या ये बस अपना कुछ नहीं भाई, अगर मालूम? कुरान पढ़ा होता तो मुल्हिद होता। इंसान मुल्हिद बनता ही जब है, जब जहालत के गड्ढे में डूब जाता है वो। एग्जैक्टली। चलिए ये बंदा मुफ्ती साहब जो है ये मेरे साथ आया, बोला मैं एथियस्ट हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। बोलता है नहीं कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कहा चलो कंटिजेंसी पे बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कंटिजेंसी पे बात नहीं करनी। कंटिजेंसी पे नहीं, बात नहीं करनी। ये बेचारा जहालत की दलदल में डूबा हुआ है, अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करे। मुझे इससे हमदर्दी है। और आमतौर से इस तरह के लोग एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार होते हैं, बचपन में कुछ हुआ होता है इनके साथ, और ये मैं मजाकन नहीं कह रहा हूँ बल्कि जेन्युइनली कह रहा हूँ। कोई ना कोई ट्रॉमा आता है कि जिसका ये ब्लेम अल्लाह के ऊपर रखते हैं, और फिर अल्लाह को ब्लेम करने के बाद उसको जस्टिफाई भी करना होता है। कहते हैं अल्लाह तो है ही नहीं, कुरान तो है ही नहीं। क्योंकि अगर कुरान को सच मान लिया, अल्लाह को मौजूद मान लिया, तो जाहिर है कि फिर अल्लाह की भी माननी पड़ेगी और अल्लाह की माननी नहीं है। तो ये एक पैटर्न है कि जिसके ऊपर ये हजरात आमतौर से चलते हैं। तो हमारे पास आते हैं ये, और बाज़ मरतबा ये कह शायद देखने के लिए कि भाई हम तो मुसलमानों को ज़ेर कर सकते हैं, बाज़ मरतबा ये ख्वाहिश होती है, और बाज़ मरतबा एक अच्छी इंटेंशन से आते हैं। तो जो अच्छी इंटेंशन से आते हैं उनको हिदायत मिल जाती है, बाकी जो लोग हैं उनकी जहालत एक्सपोज हो जाती है। बस आपको यही ये बात है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।